Hello students, welcome to our online class. Today we are discussing the same topic, ninth class, chapter 1, matter around us. We have to continue from page number 6. What is matter made up of? Okay, so all of you take out your reader. What is matter made up of? Matter जो है किससे बने हुआ है, किससे made है उसका, ठीक है. All matter is made up of very tiny particles, स्मॉल टाइनी, बहुत टाइनी पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, एटम्स बोल सकते हैं, न्यूक्लियस बोल सकते हैं, राइट. दिस लुक्स लाइक ए स्मॉल सिंपल स्टेटमेंट बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड अबाउट मैटर. फॉर दिस we need more details about the particles and their arrangement inside various forms of matter. Activity 7. How small are the particles of matter? टेक अ बीकर. अब जो है एक्टिविटी 7 में हम मालूम करेंगे कि मैटर जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो कितने आखिर स्मॉल है, कितने टाइनी पार्टिकल्स है. हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. टेक अ बीकर विथ वाटर. एक बीकर ले लीजिए जिसमें पानी रहना. एड 1 or 2 क्रिस्टल्स. क्रिस्टल मतलब सॉलिड. 2 crystals of potassium permanganate K2Cr2O7 and dissolve them in water. ओके, उसको पानी में जो है डिसॉल्व करिए. What color do you observe? Now take out approximately 10 ml of this solution and add it to 90 ml of clear water in another beaker. उसके बाद आपको क्या करना है, 10 ml of this solution, जो ये solution आप भिगाए हैं पोटेशियम परमैंगनेट का वाटर के साथ, वो उसमें 90 ml of clear water लेके अलग बीकर में आपको अलग सेम प्रोसेस करना है. यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं आप, ठीक है. 1 by 1 प्रोसेस करना है आपको बीकर में. Again take out 10 ml of this solution and add another 90 ml of clear water. फिर थर्ड में भी आपको यही करना है. Carry out this process 4 to 5 times as shown in figure 8 and observe the changes in the intensity. Intensity मतलब measurable amount of the color of the solution. यहाँ पे देखिए आप, इसका इंटेंसिटी कम होते जा रहा है. देखिए पिंक, लाइट पिंक, फिर ज्यादा पिंक, फिर डार्क. ठीक है, इंटेंसिटी मालूम हो रहा है प्रोसेस जैसा जैसा करते जा रहे हैं बीकर में. Is the water in the last beaker still colored? No. How is it possible for 2 small crystals of potassium permanganate to color a large volume of water? What do you understand from this activity? Repeat the activity by taking a few crystals of copper sulfate instead of potassium permanganate. यही एक्टिविटी, यही एक्सपेरिमेंट आपको दोबारा से करना है with a few crystals of copper sulfate CuSO4 से करना है आपको, जब आप K2Cr2O7 से करे थे, पोटेशियम परमैंगनेट से करे थे आप. Several interesting conclusion can be drawn from the above activities. कई तरह के आपको जो है आखिरी में जो है conclusion मिलेंगे, कई तरह के आपको interesting facts मिलेंगे ये एक्टिविटी करने से. We can conclude that there must be several tiny particles in just one crystal of potassium permanganate, which are uniformly distributed in water to change its color. ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट के कई तरह के क्रिस्टल्स होते हैं पानी में ही जो उसको कलर देते हैं. ठीक है. Similarly, a few crystals of copper sulfate too has several tiny particles which are distributed in larger quantity of water to give its color. वैसे जैसे कि K2Cr2O7 वाटर में जो है कलर दे रहा है पोटेशियम परमैंगनेट होके, पानी में छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, वैसे ही पानी में कॉपर सल्फेट के भी टाइनी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं वाटर में डिसॉल्व, इसीलिए वो कॉपर सल्फेट जो है कलर दे रहा है. So both solid and liquids including water are made up of tiny particles. How do the particles of the solid distribute in the liquid? Let us find activity 8. There exists space between the particles. Take a graduated beaker and fill it with some water and mark the water level. Add some salt. Stir it मतलब उसको जो है मूव करना, स्पून को घुलाना. Thoroughly with a glass rod. Observe if there is any change in the water level. Add some more salt and stir it again. एक बीकर ले लेना है, उसमें सब पानी डालना है. जरा हम यहाँ पे आपको देख सकते हैं, एक बीकर ले, फिगर 9 पे एक बीकर लेना है, इसमें पानी डालना है, फिर उसके बाद जरा नमक डालना है, फिर स्टिल घुलाना है आपको. ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन वाटर लेवल. ऐड सम मोर साल्ट एंड स्टिर इट अगेन. स्टिर मतलब गोल गोल घुमाना, मूव स्पून करना. ऑब्जर्व द चेंज इन द लेवल ऑफ द वाटर. डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज? यस. Where did the salt go? Salt dissolved. Can you see it in the water? No, we can't see the salt because salt is a solute particle which is dissolved. From the activity 7 and 8, we can conclude that liquid particles in a liquid have some space between them and the solid particles enter into the space between the liquid particles on dissolving solid in liquid.
रिकॉल द इंसेंस एक्टिविटी। फिर अब जो आप हम पहले पढ़े थे, देखिए अगरबत्ती की स्टिक एक रूम के कॉर्नर में एक जना है, फिर आपका दोस्त वहां पे ठहरे हुआ है, फिर वो जो है स्मेल स्लोली जो है डिफ्यूजन की थोड़ा स्प्रेड होती है, वो हम पढ़े थे ना, वही बता। रिकॉल द इंस्टेंस एक्टिविटी। डू यू एग्री दैट gas is also made up of particles and they have large space between them? Particles of matter attract each other. Activity 9. Observing the force of attraction between the particles of matter. ये एक्टिविटी में हम particles of matter एक दूसरे से अट्रैक्ट कैसे होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। Open a water tap. पानी का नल ओपन कर दीजिए। Allow the water to reach the ground. अब वो पानी जो है नीचे ग्राउंड पे आता है। Now try to break the stream of water with your finger. आप बीच में उंगली लगा दीजिए, नल के बीच में जो पानी जा रहा है ग्राउंड पे, आप बीच में उंगली लगा दीजिए, फोर्स है आपकी। कैन यू ब्रेक द स्ट्रीम परमानेंटली? नो। आर यू एबल टू ब्रेक द स्ट्रीम ऑफ वाटर एनीवेयर फ्रॉम द टैप टू ग्राउंड? नो। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर? फोर्स। नाउ ट्राई टू ब्रेक अ पीस ऑफ आयरन नेल विद अ हैमर। आर यू एबल टू डू इट? इफ यस, डज इट रिजॉइन? नो। व्हाट अबाउट अ पीस ऑफ चॉक? एक बार चौक को तोड़ दीजिए, सॉलिड है वो, उसको तोड़ दीजिए, फिर उसको रिपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वही बता रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन वी कैन से दैट पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन देम दैट कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर. It is also clear that this force is not equally strong and different in different form of matter. How diffusion take place? How spreading take place? We have already carried out several activities to explain the diffusion of particles of solid, liquid and gases. Diffusion can be possible only when the particle of matter move continuously. Diffusion possible जब ही होता है, spreading जब ही possible होता जब जो है particles move होते रहते हैं मैटर के, ठीक है। एक यहाँ से वहाँ सेंट की खुशबू जा रही है तो वो diffusion हुआ ना, वैसे ही particles इधर से उधर move हुए हवा में, एयर में, तभी diffusion possible है। In the instantic activity, the particles are responsible for scent move and enter the space between the air particles. The scent particles quickly spread across the room. ठीक है, हमको मालूम है वो instance activity. Particles of solid, liquid and gases can diffuse into liquid and gases. Rate of diffusion of gases is higher than of liquid, while the rate of diffusion of liquid is higher than the solid. Gases का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है बहुत ज्यादा है कंपेयर करें तो लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड से, लेकिन लिक्विड का रेट बहुत ज्यादा है कंपेयर करें तो सॉलिड से। देयर आर टू रीजंस फॉर हायर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। वन इज द स्पीड ऑफ गैस पार्टिकल्स इज वेरी हाई। गैस का जो भी गैस का पार्टिकल्स रहता है वो बहुत तेजी से स्पीड होते हैं, जैसे कि हम सेंट की स्मेल देख लिए, ठीक है, डिओड्रेंट, परफ्यूम, नेपेथिलीन बॉल्स देख ली हम, वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, डिसअपियर हो गए, तो उसकी स्पेस, उसकी जो स्पीड रहती है वेपर की, गैस वेपर की, बहुत ज्यादा तेजी से डिफ्यूज होती है हवा में। द स्पेस बिटवीन द गैस पार्टिकल्स इज वेरी हाई। स्पेस भी बहुत ज्यादा हाई होती है, इसलिए जो है गैसेस का हाईयर रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है। क्यों? स्पीड ऑफ गैस इज पार्टिकल्स इज वेरी हाई एंड द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी हाई। Similarly, the greater diffusion rate in liquids compared to solid is because particles in liquid move freely and have greater space between them when compared to the particles of solid. Solid से कंपेयर करेंगे तो लिक्विड के पार्टिकल्स बहुत तेजी से मूव होते हैं। आप जमीन पे पानी डाल दीजिए, वाटर डाल दीजिए, वो बहुत जल्दी फैल जाएगा, राइट, क्योंकि वो लिक्विड है। सॉलिड है, ये मेरे पास पेन है, चौक है, मैं इसको यहाँ पे डाल दूंगा तो फैलेगा? नहीं फैलेगा। इसीलिए डिफ्यूजन का जो है हाईयर रेट किसका है? लिक्विड का भी है कंपेयर करें तो सॉलिड से, और हाईयर रेट गैस का है कंपेयर करें तो लिक्विड और सॉलिड से। ठीक है, समझ में आ गई बात? Observe the following diagram which show the difference in the arrangement of particles in solid, liquid and gases. यहाँ पे देखिए डायग्राम बता रहा है आपको, फिगर 10 एक गैस बैलून का बता रहा है जहाँ पे गैस जो है डिफ्यूज हो रही है हवा में, लिक्विड बता रहा है जो फैल रहा है, और सॉलिड बता रहा है जो जैसे का वैसे ही है। ठीक है, In a gas, the particles are not as close together as in liquid. जैसा गैस में particles close रहते हैं वैसा लिक्विड में नहीं रहते। If a color gas is mixed with a colorless gas, अगर कोई कलर की गैस जो है मिक्स हो गई कलरलेस गैस से, the color spread evenly in it. This happens faster in gas than in a liquid because large gaps between the particles of the gas, fewer particles of gas obstruct मतलब prevent in the way of spreading. समझ में आया आपको बात? लिक्विड में जो है ज्यादातर फैलता है पार्टिकल्स कंपेयर करें तो सॉलिड से, और गैस में भी ज्यादातर फैलता है पार्टिकल्स क्योंकि उसमें गैस पार्टिकल्स बहुत ज्यादा स्पीड से फैलते हैं।
You can see the diffusion of bromine Br when it diffused through the air. Bromine is a brownish color gas. Hence, its diffusion in colorless air can be seen clearly. If we allow bromine to diffuse in vacuum, it diffuses faster into vacuum because there are no particles to prevent in its way. Okay, we have completed first chapter, matter around us. Next chapter is the motion. Okay, keywords we know: matter, states of matter, solid, liquid, gas, particles, diffusion, compressibility, pressure of size, force of attraction, compressed natural gas, CNG. We have already studied these keywords. Okay, so from this all 6 questions are there, very important. Applications of concepts also there, very important. Higher order thinking also there, very important. You have to learn these answers. What we have learned: matter is made up of a tiny particles like atom, dust, nucleus, etc. The particles of matter are very small. They are small beyond our imagination. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. जो भी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे अपने अतराफ में मैटर पार्टिकल्स है, उसमें स्पेस होती है. पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूअसली इन लिक्विड एंड गैसेस. पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव होते रहते हैं लिक्विड में और गैसेस में, सॉलिड में नहीं. मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर मैक्सिमम इन सॉलिड, मीडियम, इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड मिनिमम इन गैसेस. The particles are arranged orderly in the case of solid, while particles move randomly in gases. Diffusion, spreading is possible only when particles of matter move continuously. Diffusion कब possible होता है? जब particles हवा में move होते रहते हैं. जब आप यहाँ पे scent मारेंगे, deodorant मारेंगे, तो उसके particles हवा में move होना जरूरी है. तभी दूसरी पूरे रूम में दूसरी जगह भी आपको scent की स्मेल आएगी. क्यों? Diffusion of particles, spreading of particles हो रहा है वहाँ पे. Rate of diffusion of gas is higher than rate of liquid or solid. Rate of diffusion जो है गैसेस का बहुत हाइयर होता है कंपेयर करें तो लिक्विड से और सॉलिड से. आज की इस वीडियो में इतना ही. वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं. फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर आपको यहाँ पे लेसन एक्सप्लेन करेंगे. आज की इस वीडियो में इतना ही. वीडियो कैसी लगी, कोई भी डाउट है तो कमेंट में जरूर बताएं. जय हिंद.